आंसर्स मैं डिस्कस करती हूँ। तो कम ऑन द चैप्टर एंडिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव डिस्कस विद यू. आई एम अगेन रीडिंग द क्वेश्चन. व्हाट यू मेंट बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? Then you people have told me that when roots they are performing some additional function besides their main function, then such thing is known as modification of root. So as you know that the main function of the root is absorption of water and mineral, but in this chapter you have studied that roots are not performing only their main function, that is absorption of water and minerals. Besides this function, they are also involved in variety of other functions such as storage of food. They are providing additional support and protection. Sometimes the roots they are involved in receiving more and more oxygen for the plant. Okay, but such type of roots are known as respiratory roots, such as nematophores, which are found in case of rhizophora and mangrove trees. Okay, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बनियान ट्री के अंदर कौन सी रूट प्रेजेंट है. हम आपको बता चुके हैं कि बनियान ट्री में prop roots are present. ठीक है, एंड टर्निप जो है उसमें ग्लोबुलर रूट्स प्रेजेंट होती हैं, which are the type of storage roots. Then in mangrove trees, because these mangrove trees they are generally growing in swampy areas. ठीक है, mangrove trees जो है वो swampy areas के अंदर grow करते हैं. So the type of roots which are present in these, they are known as the nematophores or respiratory roots. Clear बेटे? उसके बाद कहते हैं कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स. तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट बिकॉज दे हैव स्टेम्स आल्सो. ठीक है, देयर आर सम मॉडिफाइड स्टेम्स इन केस ऑफ पोटैटोस वेयर द स्टेम इट गोज इनसाइड द सॉइल एंड स्टार्ट स्टोरिंग द फंक्शन ऑफ फूड. तो इन केस ऑफ पोटैटोस, इन केस ऑफ जिंजर्स, राइजोम्स, ठीक है, ये सारे स्टेम है और ये क्या कर रही है, स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन परफॉर्म कर रही है. तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द पार्ट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल इज ऑलवेज अ रूट. समटाइम्स स्टेम्स they are also present inside the soil and they are performing their additional functions. Okay, flower is a modified shoot. So you have to write in the answer of this question कि it is a normal root which finally convert into the floral root. ठीक है, on the basis of the meristems that are present at the apical basins. As you know that at the apex of the shoot apical meristems are there, but when these shoots they cross their vegetative phase and they enter into their reproductive phase, then these shoot apical meristem they get converted into the floral meristem. ठीक है बेटे, तो ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो उसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है. दैट इज नोन एज फ्लोरिजन. एंड आफ्टर दैट अ नॉर्मल शूट व्हिच इज ग्रीन इन नेचर, it start producing some beautiful color at their tips and converts into a floral shoot. ठीक बेटे, next is how is pinnately compound leaf different from palmately compound leaf? Very simple. Pinnate compound leaves are those compound leaves where the lamina it is divided into minor leaflets, and what you see on the midrib, the different leaflets they are present. And what is palmate compound leaf? तो palmate compound leaf जो है वो ऐसे leaves होते हैं in which at the tip of the midrib, ठीक है, bunch of leaflets they arise at an angle of 360 degree. ठीक है, 360 डिग्री के एंगल से जो है bunch of leaflets arise होते हैं midrib की टिप पर, and the remaining portion of the midrib जहां पे leaflets arise नहीं होते, that portion is known as racus. अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी. तो वी नो दैट फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द ब्रांचेस. ठीक है, फ्लोरल ब्रांचेस में सिर्फ ब्रांचेस. तो देखो बेटे, लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द ब्रांचेस इन थ्री डिफरेंट वेज. ऑल्टरनेट लीव्स, ठीक है, और अपोजिट फाइलोटैक्सी इज देयर एंड देन वी हैव whole फाइलोटैक्सी. तो इन केस ऑफ ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, वन लीफ इज born at a lower position in one direction, that is left side, and another leaf is born on the other side. ठीक है, अगर एक लीफ लेफ्ट में ब्रांच के नीचे लगा है तो दूसरा लीफ राइट डायरेक्शन में उससे थोड़ा सा ऊपर होगा.
So in this way, so many leaves they are present on the branches. Then if we are talking about opposite phyllotaxy, then from each point on the branch, yeah, pair of leaves they arise in both direction. तो लेफ्ट में भी एक लीफ अराइज होगा, राइट में भी, तो इससे थोड़ा सा ऊपर on the next point again a pair of leaves arise in both the direction and so on. And if we have bold phyllotaxy, then the common example is Alstonia. And here what you see, the leaves they are arising at a specific point on the branch, but all of these leaves they arranged in a circular manner, means in the form of a bowl. Bowl word का मतलब होता है circular arrangement of leaves. ठीक है, तो सारे लीव्स आपको हर एक पॉइंट पे 360 डिग्री एंगल से नजर आ रही हैं, तो such type of phyllotaxy is known as bowl phyllotaxy. The next is define the following terms. What is estivation? So children, estivation means the arrangement of the floral appendages on floral shoots. So if I am saying floral appendages, so floral appendages में we have sepals and we have petals. ठीक है बेटे, sepals जो है उनके ग्रुप्स को हम कैलेक्स कहते हैं एंड पेटल्स के ग्रुप को हम करोला कहते हैं. तो इट इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ऑन द फ्लोरल ब्रांचेस. So you know that we have different type of estivation. Valvate estivation is there, then twisted estivation is there, and then we have imbricate estivation and fourth type of estivation which is characteristic feature of family Fabaceae or Leguminosae, that is maxillary estivation. ठीक है, उसके बाद देखिए what is placentation. तो placentation is the arrangement of the ovules on the placenta of the ovary. What you see inside the ovary, a cushion-like tissue is present in the ovarian chamber, and that is known as the placenta. And on this placenta, how the ovules they arrange themselves, that process is known as placentation. Placentation भी बहुत तरह की है. First type of placentation is marginal placentation, then we have axial placentation, then we have parietal placentation, precentral placentation, and last we have basal placentation. तो सभी के टाइप्स लिखकर आपने उसके साथ एग्जांपल देनी है. What is the actinomorphic flower? All of you know that an actinomorphic flower is a flower in which when we divide the floral parts in any of the radial planes, we always get equal half. ठीक है, जब हम किसी भी फ्लावर को किसी भी रेडियल प्लेन में कट करने की कोशिश करते हैं एंड हमें इक्वल हाफ मिलते हैं, तो such type of flower is known as actinomorphic flower. And in the floral formula we represent actinomorphic flower. कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक सर्कल बनाते हैं, उसके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को यानी रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है बेटा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है? तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज अ टाइप ऑफ फ्लावर. ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिसकी सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है. मींस व्हेन यू ट्राई टू डिवाइड द फ्लावर थ्रू द सेंट्रल एक्सिस इन अ वर्टिकल प्लेन, दैट ऑलवेज टू गेट इक्वल हाफ. ठीक है, किसी भी फ्लावर को रख के अगर हम उसको ऐसे कट करते हैं कि हमारी जो लाइन है वो उसके सेंटर में से वर्टिकल प्लेन में जाती है, तो फ्लावर के दो इक्वल हाफ हमें मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सच फ्लावर इज नोन एज द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. सॉरी. Then superior ovary. So always remember children, superior ovary means when the ovary is present at the top of the thalamus. ठीक है, and such type of ovary is found in case of a hypogynous flower. So all of you know very well that a hypogynous flower is a flower in which the fourth ball, which actually consists of pistils or carpels, known as gynoecium. तो अगर किसी भी फ्लावर का गाइनोशियम जो है वो अदर फ्लोरल पार्ट से अपवर्ड पोजीशन पे लोकेटेड है, तो नेचुरली उसकी ओवरी भी थैलेमस के ऊपर ही लोकेटेड होगी. तो such type of flower is known as hypogynous and ovary is known as superior ovary. ओके बेटे, आगे वही पूछा है आपसे, सुपीरियर ओवरी कैसी होती है? तो सुपीरियर ओवरी जो है वो हमेशा फ्लावर के थैलेमस के टॉप पर होती है. ठीक है बेटे, तो फ्लावर का जो थैलेमस है उसके अंदर नहीं होगी, उसके ऊपर अगर ओवरी है तो वो सुपीरियर ओवरी हमेशा हाइपोगाइनस फ्लावर में होती है. व्हाट इज अ पेरिगाइनस फ्लावर? तो यू नो दैट पेरिगाइनस फ्लावर इज अ फ्लावर इन व्हिच द ओवरी इज सेमी इंफीरियर, मींस जिसमें पिस्टल या कार्पल की
जो हाइट है उतनी ही है जितने की अदर फ्लोरल पार्ट्स की है. So if the pistil and carpel they have the same height as other floral parts, then such a flower is known as perigynous flower and the ovary is semi-inferior in it. Yes, बेटे epipetalous stamen क्या होता है? When the stamens they are joined with the petals. ठीक है, जब stamen petals के साथ join होते हैं, तो such type of stamens are known as epipetalous condition. Clear? Now next is differentiate between racemose and cymose inflorescence. Yes, children, anybody want to speak? Racemose and cymose. What is racemose inflorescence? Yes, if anybody want to give the answer, he or she can raise hand. Nobody? Hanji. Are all children are present physically behind the camera or not? Okay, but racemose inflorescence. First of all, you know that what is inflorescence? The inflorescence is actually the arrangement of the flowers on the floral branches. ठीक है? Floral branches पे flower कैसे arrange है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं inflorescence. तो inflorescence जो है, it is broadly of two types. Inflorescence दो तरह का है. First is known as racemose inflorescence. And another is known as cymose inflorescence. ठीक है बेटे, what is racemose inflorescence? Racemose inflorescence is an inflorescence in which the main axis continues to grow and the flowers they are generally borne on the lateral shoots first but in an acropetal succession. ठीक है, तो दो पॉइंट लिख लेंगे हम. फर्स्ट पॉइंट होगा कि the growth of the main axis continues. Point number 2, flowers are borne laterally. ठीक है, flowers are borne on the lateral branches. Point number 3, all flowers are arranged in acropetal succession. Cymose देखिए, तो cymose में आप लिखोगे the main axis terminate in flower, first point. Then second point में आप लिखोगे the main axis it bears flower first followed by the lateral branches. Okay, third point में आप लिखोगे all flowers they are born in a basipetal manner. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ acropetal और basipetal में क्या डिफरेंस है. ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ यस फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. वेरी इजी. व्हाट आर फाइब्रस रूट एंड व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स? हां जी, एनीबॉडी वांट टू स्पीक? यस बेटे, फाइब्रस रूट्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोनोकॉट्स का. ठीक है, इट इज बेटर दैट एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. ठीक है, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अ पैसिव लिसनर. इफ यू नो द आंसर यू कैन स्पीक. So I am saying कि fibrous roots. Fibrous roots are actually found in case of monocot plant. So here in case of fibrous root, the primary root is short-lived. ठीक है, primary root short-lived होती है and it is replaced by large number of roots जो कि एक bunch की form में निकलती हैं from the same point. If so many roots they arise in the form of a bunch from the same point, then such type of root system is known as fibrous root. So you can say the primary root is only short-lived and very soon they are replaced by bunch of roots. तो ये grasses में, wheat plant में, rice इनमें fibrous roots होती हैं. And what are adventitious roots? The roots which arise from other parts of the plant other than radicle. वैसे तो हमें पता है कि सारी roots radicle से arise होती हैं, but sometimes the roots they arise from other part of the plant. So these roots are adventitious roots. So here I am showing two roots, split root and prop root. So slit root they are generally seen in case of maize. So here the roots they arise from the lower nodes of the stem. And prop roots again. Prop roots जो हैं वो भी stem जो हैं उसकी nodes में से arise होती हैं. These are the hanging roots, which are generally found in case of banyan tree. ठीक है, तो hanging roots of banyan tree are prop roots, and the roots that are found at the bottom they arise from the nodal part of the this क्या कहते हैं nodes of the stem. Then such type of roots are known as stilt root. Clear बेटे? Next is apocarpus and syncarpus. वो भी क्या होती है? हाँ जी,
बीच में एक संडे भी आया था, तो आपने उसमें चैप्टर को रीड करना था, बिकॉज चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था संडे से पहले। ठीक है, इफ यू आर नॉट नोइंग द आंसर, दिस मीन्स यू हैव नॉट रिवाइज्ड द चैप्टर। तो देखो बेटे, हमसे पूछा गया है एपोकार्पस एंड सिनकार्पस क्या होता है। सी फॉर कार्पल एंड सी फॉर कार्पस। ठीक है, तो एपो मीन्स फ्री, जब सारे के सारे कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं, और जब सारे के सारे जो हैं वो फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो अगर सारे कार्पल्स फ्री हैं तो एपोकार्पस कंडीशन है, सारे फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस है। सिन वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग क्या होता है, फ्यूजन होता है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, बड़े आराम से ड्रॉ कर लेंगे, आपसे उसने ड्रॉ करने के लिए बोला है ग्राम सीड। तो देखिए यहाँ पे ग्राम सीड का डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ जो आपने ड्रॉ करना है। ठीक है बेटे, यहाँ पे यस दिस इज द सीड, आई थिंक, हाँ जी, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम ग्राम सीड्स का, जिसमें आपको सीड कोट नजर आ रहा है, हीलम माइक्रोफाइली, एंड देन ओपन फॉर्म में हमने ग्राम सीड को दिखाया, दीज आर द फ्लैशी कोटिलेडॉन्स, दिस इज प्लीमूल, दिस इज रेडिकल। ठीक है बेटे, यहाँ पे आपको राजमा का सीड दिखाया हुआ है, वो भी इसी का एग्जांपल है। तो आपको ग्राम का पूछा तो आप ग्राम का ड्रॉ करें। बीएस ऑफ मेज सीड, वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ करने हैं अपने मेज सीड का। ठीक है, तो ये मेज सीड का वर्टिकल सेक्शन आपको दो तरह से दिखाया हुआ है बुक में, ये वाला डायग्राम है, तो आप ये सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसमें कॉलियोरिजा, रेडिकल, प्लीमूल, कॉलियोप्टाइल आपको नजर आ रहा है, स्कूटैलम आपको नजर आ रही है, which is the single cotyledon. Then endosperm is there. Two types of endosperms are there in maize seed, yellow endosperm and white endosperm. Then aileron layer is there. Aileron layer एक proteinaceous sheath like covering होती है जो embryo को cover करके रखती है. Then seed coat and fruit ball is there. So you have to draw this second one diagram. Yes, till the next question पे आ जाएंगे. Take one flower each of the family Fabaceae and Solanaceae and write down their semi-technical description. तो यहाँ तो आप Fabaceae का मेंबर्स जो हैं उसको आप जो है ड्रॉ करेंगे, या फिर Solanaceae के। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी चीजें। अगर आपको फ्लोरल फार्मूला भी पता है ना, तो उसी से सारे करेक्टर हमारे सामने आ जाते हैं। देखो मेरे पास ये फ्लोरल फार्मूला है, किसका है, फैमिली Fabaceae का है। अब देखो इसी से मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। अगर परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब फ्लावर के अंदर सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है। परसेंटेज का साइन रिप्रेजेंट करता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, इफ वी हैव अ सर्कल और सर्कल के ऊपर एरो एंड नीचे प्लस है, इसका मतलब फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। के रिप्रेजेंट कैलेक्स, हाउ मेनी सेपल्स आर देयर इन कैलेक्स, 5 सेपल्स आर देयर, एंड सारे फ्यूज्ड हैं इसलिए उसको ब्रैकेट में लिया हुआ है, तो इसीलिए हमने 5 के आसपास ब्रैकेट लगाई है, मतलब ऑल द 5 पेटल्स सेपल्स आर फ्यूज्ड। ठीक है, करोला कैसा है, तो करोला जो है वो पैप्लियोनेशियस करोला है, क्योंकि उसके अंदर जो है 3 तरह के पेटल है। वन पेटल इज अ बिग व्हिच इज नोन एज स्टैंडर्ड, ये इन्वर्टेड है, एंड 2 पेटल्स जो है वो लेटरल हैं और आपस में, ठीक है, फ्यूज्ड नहीं है, जिनके आसपास ब्रैकेट नहीं लगाई है, और जिनके आसपास ब्रैकेट लगाई है तो उनको ब्रैकेट में लिया है, तो दीज आर एक्चुअली द कील। ठीक है, तो वो कील वाले जो है वो जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ से अंदर जो डार्क कलर से उसने पेटल बनाए हुए हैं, उसमें देखो सबसे बड़े वाला स्टैंडर्ड, देन these two are known as wings and these are known as keel। फिर देखिए एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम इज 9 + 1 लिखा है, 9 को ब्रैकेट में लिया है। तो हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर, 10 स्टेमन्स आर देयर, बट these stamens are diadelphous condition, मींस एक स्टेमन अलग है, 9 एक साथ यूनाइटेड है, इसलिए 9 को हमने ब्रैकेट में लिया। ठीक है बेटे, गाइनोशियम, तो गाइनोशियम में अगर हमने 1 लिखा है तो इसका मतलब ओवरी 1 कार्पल से बनी हुई है, मोनोकार्पलरी, और अगर एक कार्पल से बनी है तो चैम्बर भी एक ही है, यानी मोनोलॉकुलर है। एंड अगर हमने जी के नीचे बार लगाया है, दिस मींस फ्लावर कैसा है, हाइपोकाइनस है, एंड ओवरी कैसी है, तो ओवरी यहाँ पर सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, तो देखो इतने से फ्लोरल फार्मूला से मैंने पूरे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया। फ्लोरल डायग्राम में देखो सबसे आउटरमोस्ट वर्ल्ड सैंपल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सैंपल सारे कैसे हैं, 5 हैं, और पांचों ही यूनाइटेड है, और इनकी एजेस एक दूसरे को टच कर रही है बेटे, तो इसलिए एस्टिवेशन कौन सी है, वाल्वेट है।
कईयों के अंदर वॉल्वेट एस्टिवेशन हो सकती है, कईयों के अंदर इम्ब्राइकेट हो सकती है। ठीक है, वॉल्वेट में सिर्फ एजेस टच करती हैं एंड इम्ब्राइकेट एस्टिवेशन के अंदर 3 ऑफ द पेटल्स दे आर ओवरलैपिंग विद देयर एजेस एंड बाकी जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक पेटल ऐसा है, सेपल ऐसा है जो इंटायरली बाहर होता है एंड वन जो है उसकी दोनों एजेस अंदर होते हैं, वो इम्ब्राइकेट एस्टिवेशन। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसी तरह से सोलेनेसी फैमिली के यहाँ से आप उसका बता देंगे। तो देखो अगर हमने लिखा है फर्स्ट सिंबल अपना देखिए, तो फर्स्ट सिंबल आपको बता रहा है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स के नीचे 5 लिखा है, 5 सेपल है, फ्यूज्ड है। फिर करोला के नीचे 5 लिखा है, ब्रैकेट में लिया है, इसका मतलब 5 पेटल्स ऑल आर फ्यूज्ड। फिर देखो एंड्रोशियम के नीचे भी 5 लिखा है पर वो फ्यूज्ड नहीं है, तो इसीलिए हमने उनको क्या बोला है, पॉली। आप इसको देखो एंड्रोशियम जो है उसमें 5 जो है फ्यूज्ड नहीं है, पर हमने करोला में से एक लाइन ले जाके एंड्रोशियम के ऊपर लगाई है, मतलब 5 पेटल किसके साथ फ्यूज्ड है, 5 स्टेमन्स किसके साथ फ्यूज्ड है, करोला के साथ यानी पेटल्स के साथ। तो इसलिए कौन सी कंडीशन है, एपीपेटलस कंडीशन। फिर गाइनोशियम के नीचे हमने बात लगाई है, इसका मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर है, ओवरी सुपीरियर है, 2 लिखा है, 2 को ब्रैकेट में लिया है, तो इसका मतलब कार्पल कितने हैं, 2 कार्पल्स आर देयर, बाइकार्पलरी, बाइलॉकुलर, ओवरी है, 2 कार्पल से बनी हुई है, 2 ही उसके अंदर चैम्बर है। क्लियर बेटे, तो इस तरह से हम पूरी की पूरी सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ these floral formulas and देखो डायग्राम के अंदर वही सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। 5 हमारे पास जो है सेपल है, ऑल आर फ्यूज्ड। देन कोरोला के अंदर 5 भी पेटल है उसके अंदर वाली बॉल में, और सभी जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड एंड फ्यूज्ड है। फिर आप स्टेमन देखिए, हर एक स्टेमन किससे जुड़ा हुआ है, पेटल से, तो इसलिए हमने हर एक स्टेमन को पेटल के ऊपर बनाया। देन गाइनोशियम में देखो 2 चैम्बर वाली ओवरी है, तो बाइलॉकुलर ओवरी आपको नजर आ रही है डायग्राम में, हाइपोगाइनस फ्लावर है एंड मल्टी बाइलॉकुलर है और बाइकार्पल है। ठीक है बेटे, तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर है हम स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल देयर आर 5 टाइप ऑफ प्लासेंटेशन फाउंड। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपकी कौन सी स्लाइड है। यस बेटे, तो 5 टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज देयर, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, प्रीसेंट्रल, बेसल। ठीक है, तो प्लासेंटेशन की डेफिनेशन दे देंगे। दैट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, मार्जिनल में क्या होता है, प्लासेंटा इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल रिज ऑफ द you can say ovary and ovules they are born on this ridge forming 2 rows। तो एक पॉड में इस तरह से ओव्यूल एक रो में अरेंज है, दूसरे पॉड में दूसरे रो में अरेंज है। तो such type of placentation is found in case of pea and other legumes। Axial placentation, placenta is present in the axial position and ovules are attached to this axial position in a multilocular ovary। देखो ओवरी में कितने चैम्बर प्रेजेंट है, बहुत सारे, 1 2 3 4 5, यानी पेंटालोकुलर ओवरी है, इसलिए हमने मल्टीलोकुलर लिखा है। और प्लासेंटा एक्शियल पोजीशन पर है और उसी के साथ अटैच्ड है 2 ओव्यूल्स। तो ये चाइना रोज में, टोमेटो एंड लेमन में होती है। पैराइटल प्लासेंटेशन, ओवरी हैज 2 वॉल्स और इनर वॉल जो है ना ओवरी की, वहां पे क्या अटैच्ड है, ओव्यूल्स अटैच्ड है। तो ओवरी के चैम्बर्स नहीं बने हुए, सिंगल चैम्बर इज ओनली देयर। ठीक है, पर कई बार वो कहते हैं कि सम फॉल्स सेप्टम फॉर्म, बीच में कुछ फॉल्स सेप्टा बन जाते हैं जिससे वो ओवरी 2 चैम्बर नजर आती है, पर ऐसा नहीं होता कि 2 चैम्बर है, दिखाई देती है 2 चैम्बर कई बार। एग्जांपल इज मस्टर्ड एंड आर्चिडोन। Then we have free central placentation. The placenta is present at the center and on this placenta the ovules they are attached। ठीक है, एंड सेंट्रल प्लासेंटेशन जो है इसमें सेप्टास एब्सेंट रहते हैं, फ्री सेंट्रल में। एग्जांपल है डायंथस एंड प्रिमोस, दोनों ही फ्लावर है। बेसल प्लासेंटेशन, तो बेसल प्लासेंटेशन जो है उसमें बेस पे ओवरी के प्लासेंटा डेवलप होता है और उसी के साथ अटैच होता है सिंगल ओव्यूल। तो such type of placentation is found in case of sunflower, marigold, mango, etc.
क्लियर? नेक्स्ट देखिए व्हाट इज अ फ्लावर, तो आपका आंसर होगा फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट एंड इट कैरीज बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब उसके अलग अलग पार्ट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं तो बहुत ही इजीली आप एक्सप्लेन कर लोगे किसी भी फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, तो फ्लावर के 4 वॉल्स होती हैं। पहली वॉल कैलेक्स है, सेपल का ग्रुप होता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है बड स्टेज पर। ओके बेटे, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम सेकंड वॉल की बात करें तो सेकंड वॉल जो है करोला है। इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स हैविंग कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। एंड्रोशियम थर्ड इनरमोस्ट वॉल है, रिप्रोडक्टिव वॉल होती है, स्टेमन ग्रुप ऑफ स्टेमन्स दे फॉर्म एंड्रोशियम and it has 2 parts, the bile of the anther and a stalk-like cylindrical part known as filament. Gynoecium, तो gynoecium जो है वो सबसे innermost wall है, it consists of pistils or carpels and it has 3 components, stigma, style and ovary. Inside the ovary, ovarian cavity is there and a cushion-like tissue is there, placenta, where the ovules they are arranged. ओके, इस तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द वेरियस लीफ मॉडिफिकेशन हेल्प प्लांट, प्लांट के अंदर लीव्स जो है वो कैसे मॉडिफाई करते हैं। ये टॉपिक देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स द लीव्स दे कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल्स, पीस एंड स्पाइन्स में फॉर डिफेंस एज इन कैक्टस। ठीक है, समटाइम्स फ्लैशी लीव्स आर फाउंड इन केस ऑफ अनियन एंड गार्लिक टू स्टोर फूड एंड इन अ वेरी स्पेशल प्लांट नोन एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड and here the leaves they are not performing the function of photosynthesis, so instead of that the petiole is there and that petiole it expands and becomes green and do the process of photosynthesis. Okay, in case of insectivorous plants the leaves they have characteristic shape. For example, there is an insectivorous plant known as a leafanthes or a pitcher plant. pitcher plant जो है उसके अंदर leaves कैसे होते हैं, pitcher shaped होते हैं बेटे। And Venus flytrap जो है उसमें भी कलरफुल लीव्स होते हैं and these leaves they actually have some hairs and these hairs they trap the insect, so in this way they provide nutrition to the plant. तो ये चारों पॉइंट आप लिख लेंगे, आपके पास प्रेजेंटेशन आ जानी है बहुत जल्दी। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें आता है, डिफाइन द टर्म इनफ्लोरेसेंस। so you know that inflorescence is the appearance of the flower on the floral branches. कितने टाइप्स के इनफ्लोरेसेंस हैं, तो you know that broadly it is of 2 types. ठीक है, racemose inflorescence in which the main axis continues to grow and flowers are borne on lateral branches in apopetal succession, and cymose inflorescence in which the main axis terminates in a flower and the main axis has limited growth and the flowers they are borne first on the main branches in a basipetal manner. ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें आपको उसने ट्विस्ट दी है, कहता है कि फ्लावर किसी फ्लोरल फॉर्मूला में अगर एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस फ्लावर है जिसमें 5 यूनाइटेड सेपल्स हैं, 5 फ्री पेटल्स हैं, 5 फ्री स्टेमन्स हैं, 2 यूनाइटेड कार्पल्स हैं, ओवरी सुपीरियर है एंड एक्साइल प्लासेंटेशन है, तो फिर बताइए कि फ्लावर जो है ये फ्लोरल फॉर्मूला तीनों फैमिलीज में से किसका है। हाँ जी, किसका है? या स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है, ठीक है, इतनी मजे से नहीं बताएंगे, तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कल बताएंगे नए लेक्चर में। ठीक है बेटे, फ्लोरल फॉर्मूला लिख के देखना है, फिर मैच करने कौन सी फैमिली को बिलोंग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे है, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन टू देयर इंसर्शन ऑन द थैलेमस। ठीक है बेटे, इसमें उसने आपको ये बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पिस्टल्स, ठीक है, थैलेमस पे बाकी फ्लोरल पार्ट और पिस्टल कैसे अरेंज है। तो आपको पता है वी हैव 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स एवरी। फर्स्ट इज देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, हमारे पास फ्लावर कितने तरह के, हाइपोगाइनस फर्स्ट जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है, पिस्टल जो है इट इज स्लाइटली अबव द अदर फ्लोरल पार्ट्स, तो एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल। Then we have perigynous if gynoecium is situated in the center. अगर gynoecium सेंटर में ही प्रेजेंट है, अदर फ्लोरल पार्ट्स भी सेम लोकेशन पर है, तो फिर फ्लावर पेरिगाइनस है
और ओवरी सेमी इंफीरियर है, इसके एग्जांपल है प्लम, देन रोज एंड देन पीच। ठीक है बेटे, पीच आड़ू होता है, प्लम आलूबुखारे होते हैं। देन एपिगाइनस, तो एपिगाइनस फ्लावर्स आर दोस फ्लावर इन व्हिच द ओवरी इज इंफीरियर and the pistil is at a lower position than other floral parts। ठीक है, तो इसमें 3 फ्लावर आ जाते हैं, गुआवा का फ्लावर जिसे हम अमरूद बोलते हैं हिंदी में, कुकुम्बर का फ्लावर आ जाता है, खीरे का, एंड रे फ्लोरेट्स आ जाते हैं सनफ्लावर में। देखो बेटे, सनफ्लावर में 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स। तो जो रे फ्लोरेट्स हैं सनफ्लावर के, उसका एग्जांपल है, तो ये तीनों लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है, उसको सभी स्टूडेंट कर लेंगे और कल तक मुझे बताएंगे कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है फ्लोरल फॉर्मूला। हाँ जी चिल्ड्रन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटे? यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? हरमनप्रीत, यू वांट टू स्पीक समथिंग? यस मैम। यस बेटे बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर दो। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था बीच में से। देखो बेटे, उसमें हमने स्टेम की मॉडिफिकेशंस बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है उसमें आप लिखोगे स्टोरेज ऑफ फूड। स्टेम जो है समटाइम्स मॉडिफाइड एंड दे गो इनसाइड द सरफेस ऑफ द सॉइल एंड दे स्टार्ट स्टोरिंग फूड। ठीक है, तो उसमें आप कई सारे एग्जांपल दे सकते हो, पोटैटो है, देन हमारे पास जिंजर है, टर्मरिक है, जिमिकन है, तो ये सारे ऐसे स्टेम है जिनके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा है। ओके बेटे, तो नेक्स्ट में देखो, और हमने स्टेम के फंक्शन बताने हैं। सारा आंसर हमारा पेज नंबर 68 पे गिवन है। सेकंड है कि समटाइम द टेंड्रिल्स दे अराइज फ्रॉम द स्टेम, तो कई बार स्टेम की नोड्स में से टेंड्रिल्स अराइज होते हैं व्हिच आर नोन एज स्टेम टेंड्रिल्स एंड दे आर इन्वॉल्वड इन क्लाइंबिंग। ठीक है, तो टेंड्रिल का फंक्शन हमेशा क्लाइंबिंग होता है, तो इसकी हेल्प से स्टेम जो है उसकी ग्रोथ होती है और एक पर्टिकुलर हैबिटेट से दूसरी जगह पे जो स्टेम जो है वो क्लाइंब करने में प्लांट को हेल्प करता है। फिर आपको कहा था कई बार स्टेम जो है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, इधर कन्वर्टिंग इनटू स्पाइन्स और थॉर्न्स। तो थॉर्न्स आपको नजर आते हैं किसके केस में? आपको थॉर्न्स जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में नजर आते हैं, ऑरेंजेस में। ठीक है बेटे, लेमन के अंदर। उसके बाद देखिए टेंड्रिल्स के भी एग्जांपल सुन लीजिए। टेंड्रिल्स आपको कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में नजर आते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। कंफ्यूज नहीं होंगे लीफ एंड स्टेम टेंड्रिल्स से। ठीक है बेटा, देयर इज वन अनदर प्लांट अपुंशिया। तो अपुंशिया के अंदर स्टेम इज डूइंग फोटोसिंथेसिस बिकॉज़ हियर द लीव्स दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। ये डेजर्ट प्लांट है, लीव्स तो स्पाइन बन गए हैं, स्टेम फ्लैट होकर क्या कर रहा है? फंक्शन परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस का by developing chlorophyll pigment in them. Okay, so there is one another example, Fuchsia के साथ Euphorbia में भी flattened stem है, photosynthesis करता है। फिर next is कि sometimes the stems they are involved in vegetative propagation. So there is one method of vegetative propagation known as layering, and layering के अंदर हम जो है क्या देखते हैं कि stem जो है उसमें से जो branches निकलते हैं, when you take one branch and you covered that branch inside the soil, so what you see, that portion which you covered inside the soil, from that portion new roots arise and that branch it gets fixed with the ground, then from the ground it finally comes out and grows again, then फिर से आपने थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको दबा देना है, उसकी भी रूट्स निकल आएंगी, फिर वो ब्रांच आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह स्टेम क्या करता है? प्रोपोगेट करता है। ये एग्जांपल लेयरिंग कहलाता है और इसका एग्जांपल है जैस्मिन प्लांट और मिंट प्लांट। मिंट होता है पुदीना और जैस्मिन फ्लावर का नेम है, उसके अंदर लेयरिंग मेथड जो है उससे स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। ठीक है बेटे, उसके बाद 2 एग्जांपल दिए थे उसने एक्वेटिक प्लांट के, पिस्टिया एंड आइकोनिया। आइकोनिया का अनदर नेम है वाटर हाइसिंथ, तो इन केस ऑफ पिस्टिया एंड इन केस ऑफ आइकोनिया। ओके बेटे, व्हाट इज द स्पेशल थिंग? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि स्टेम जो है उसमें लॉन्ग इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है और हर एक जो नोड है स्टेम के उसमें से बंच ऑफ लीव्स अराइज होती हैं और उसी के नीचे टफ टफ रूट्स अराइज होती हैं। तो ये जो स्टेम्स होते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर जो नोड है स्टेम के उसको दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेम, इनको ऑफसेट कहते हैं, OFF। ठीक है, तो ये
जो है लास्ट एग्जांपल है क्रिजेंथेमम का बताया उसमें, पाइनएप्पल, बनाना और क्रिजेंथेमम में स्टेम जो है वो हर साल अराइज होता है, एक बार खत्म होने के बाद इसे होल प्लांट सेनेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो दिस कंप्लीट आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस. नाउ यू डू द एनसीईआरटी क्वेश्चन इन योर फेयर notebooks. Okay, we will also tell you what you have to do in practical file. All of you buy practical file. Okay, so अब ये चैप्टर कंप्लीट है, सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स.